Hello everyone and welcome to your channel Byto. So ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କମନ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟର 2026ର ଜୁଲୋଜିର ଆନ୍ସର କି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯୋଉଟାକି ଅନଅଫିସିଆଲ ରହିବ। ଏସ୍ଏସ୍ପି ପରେ ଅଫିସିଆଲ ଆନ୍ସର କି ରିଲିଜ୍ କରିପାରେ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆଣିବ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କେତେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ରହୁଛି ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବ ବା ଆଉ କ'ଣ ଅଦର ଯାହା ବି କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ आशा करुच्ची तो एग्जाम तुमମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ ଯଦି ବି ସେମିତି ଖରାପ ହେଇଛି କିଛି ସେମିତି ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ଆମେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡାନ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନା ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ତ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ବି ଠିକ୍ ଅଛି ନ ଭଲ ହେଇଛି ବି କିଛି ନାହିଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଦର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମେ ବି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ସହିତ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 5-6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏବେ ଖାଲି ଆନ୍ସର କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଟିକ୍ କରି ଯିବା ଆଉ ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ସହିତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକିନା ଯାଏ ତ ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ 3 ମନ୍ଥ ପାଖାପାଖି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିନା ଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ କିପରି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଖାପାଖି 70ରୁ 80% ପାଖାପାଖି ବା ଆମେ କହିପାରିବେ 80 to 90% ପାଖାପାଖି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ହିଁ ଆସିଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଦେଖିଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି এই ভিডিওটা বটনি ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ଜୁଲୋଜି ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଥିବ ଯୋଉ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇକିନା କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଇଏ କରେ ତୁମେ ଯାଇକିନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଟିକେ ଯାଇକିନା 3.20 ପାଖାପାଖି ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଟିକେ ଦେଖିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ଯାଅ ଯେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 3 ୱିକ୍ ଏଗୋ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ଏଇଠି 3 ୱିକ୍ ଏଗୋ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ମାନେ ପାଖାପାଖି 21 ଦିନ ପାଖାପାଖି ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ତ ଯେଉଁମାନେ ବି 20 days ଏନଫ୍ ଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଠି ଲେଖା ବି ହେଇଥିଲା ଯେ ଦା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁସାରେ ଯାଇଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ତା ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମୁଁ ଚଲେଇଥିଲି ସିରିଜ୍ଟା ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଯାଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ହେଲା ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତୁମେ ଯାଇକିନା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ତାପରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବ ରିୟଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ ତ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି तो देखो फास्ट क्वेश्चन नो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी व्हिच फाइलम एग्जिबिट ए डिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान विथ ए टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल कहला माने डायरेक्ट पळै आछे सेठी सिलेंडर पळै आछे सिलेंडर टाको नाइ डायरेक्ट कहा जाय एठी डिप्लोब्लास्टिक बोली टर्म यूज करा हिची तो आंसर हिजबो सी हला फर्स्ट आंसर कोन हे जाउची ना सी बोली आंसर हे जाउची देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन जे फेरेंजियल इंगिल स्लिट एटाला कोडाइट्रो कैरेक्टरिस्टिक्स भितर गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स तो से कहछि आर कंसीडर ए डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ व्हिच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स अच्छा एमनक भितर फेरेंजियल गिल स्लिटटा कोमानकर एटा थाए कोडेट मानकर थाए आंसर तो डी इज सिंपल क्वेश्चन फास्ट किसी क्वेश्चन ना बहुत इजी क्वेश्चन आस्तला आउ देखिबो कि आमे टिके मार्क करबो जायकिना से वीडियोटा देखिबो जो रिवाइज टॉपिक्स ना रे देइथिले लास्ट टाइम रिवीजन टॉपिक्स ना रे तो टिके लक्ष्य करबो जे कोडा कोडा अछि कि नै मु जहा जहा देइथिले मु टिके मार्क भी करे देबी हला जे कोन कोन कोडा कुहाइतला कोडा कुहाइ नतला आ जति कि मो चैनल रे वीडियो अछि मोर तो चैनल नै आपण मानकर ही चैनल तो ସେଇଠି ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଜୁଲୋଜିରେ ଏଇଥର ଯେଉଁ ଆସିଛି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ ରିଭାଇଜ୍ କରୁଥିବେ ତ ଆରାମସେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ମଡର୍ନ ଫାଇଲୋଜେନେଟିକ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରାଇମେରଲି ରିଲାଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଫାଇଲୋଜେନେଟିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କହିଲା ମାନେ ଫାଇଲୋଜେନେଟିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇକିନା ଏଇ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇକିନା ଏଇ ଫାଇଲୋଜେନେଟିକ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ଟା ହିଁ ମେନଲି କରାଯାଇଥାଏ ତ ଆନ୍ସରଟା ହେଇଯିବ 3 ନମ୍ବରଟା ए ହେଲା नेक्स्ट आम जा टू स्क्विरल्स पॉपुलेशन एटा देख स्पेसिएशन जो पढ़ाई एटा जो मुझे प्रीवियस क्वेश्चन करूली तो मुझे जो प्रीवियस क्वेश्चन ऑप्शन थ्रो आम जाऊे से जिनसा को स्पेसिफिकली ये चार्टा जाक एलोपेरी
ପାରାସିମ୍ ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ସ୍ପେସିଏସନ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯଦି ସେଠି ମେନସନ୍ କିଛି କରୁଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରିଭର କିଛି ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଯଦି ସେ ଦଉଛି ଏରିଆ ଯୋଉଠିକି ସେପାରେଟ୍ କରୁଛି ଦୁଇଟା ପପୁଲେସନକୁ, ତାହେଲେ ସେଇ କେସରେ ତୁମେ ଆଖି ମୁଜିକିନା କ'ଣ ମାରିଦେବ ଏଲୋପାଟିକ୍ ସ୍ପେସିଏସନ ମାରିବ ବୋଲି ତୁମକୁ କହିଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଠି ସ୍ପେସିଫିକାଲି କ'ଣ କରିଦେଇଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ କହିଦେଇଛି ସେ ହେଲା। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଏଇଟାର 4 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଯିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଅକର୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସିଜୋଗୋନି इन प्लाज्मोडियम भाइरस टिके मन पकेबो जाइकिना से वीडियो रे देखियो जे प्लाज्मोडियम भाइरस टारू इंपोर्टेंट रहउची क्वेश्चन सब थोर आछी बोली मु कहिदिली सेठी जे निहाती देखिना जीवो प्लाज्मोडियम भाइरस रो। तो एठी देखो देछि गुडे इवेंट जो सिजोगोनी प्लाज्मोडियम भाइरस देखा जाय सेटा को प्रकार फ्यूजन कथा पचाछि से माने इवेंट को भितर कोडा बोली से कहछि गेमेटिक फ्यूजन ना गेमेटिक फ्यूजन ता हमरो नॉर्मली जो मस्किटो भितर रहउची एटा एक्चुअली न्यूक्लियर डिवीजन होइता है, न्यूक्लियर डिवीजन होइता है किंतु विदाउट साइटोकिनेसिस। एटी साइटोकिनेसिस माने साइटोसिस रो डिवीजन होनी खाली न्यूक्लियस डिवीजन होची जेमति कि हमरो मल्टीपल फ्यूजन होइते से भाई। तो आंसर हे जब 5 नंबरटा हला बी हला। 6 नंबरटा होची क्वानोसाइट्स एटा मध्ये क्वेश्चनटा मध्ये এই क्वेश्चनटा मध्ये हम डिस्कशन करथिले प्रीवियस क्वेश्चन नहीं जे क्वानोसाइट गुडा हमरो जो अछि से माने को मन करथाय कोरिफर मान कर हमरो थाय बोली डिस्कशन करथिले। तो एटा कोन करथाय ना वाटर करंट मेनली जनरेशन करिया पे और फूड कैप्चर करिया पे एटा हेल्प करथाय। तो 6 नंबरटा हे जो कोन बी हे जो 6 नंबरटा आंसर ठीक। नेक्स्ट आम क्वेश्चन जीवा 7 नंबरटा जीवा 7 नंबरटा होची मेटाजेनेसिस इन ओवेलिया इनमोल्स। तो ए मानकर ही क्वेश्चन बहुत टाइम रे आसे जो पॉलिप मेडुसा हला सिलिंड्रेट मानकर ए मानकर क्वेश्चन आसे बोली मु कहितले ओवेलिया फोवेलिया गुडा सब लिखितली मु तमानकु। तो सेटा क्वेश्चन टा कोन होची मेटाजेनेसिस टा को कोन इन्वॉल्व करथाय हला। एटा होची कोन आंसर हेजिवो ना एसेक्सुअल पॉलिप एंड सेक्सुअल मेडुसा एटा हेजिवो 7 नंबरटा कोन हेजिवो आंसर ए हला। एसेक्सुअल मोड ऑफ जो होची सेटा पॉलिप स्टेजेस देखा जाय आ सेक्सुअल कोन मेडुसा ओवेलिया मानकर हला। तो ओवेलिया ओरेलिया एगुडा ही बहुत टाइम रे एई थ्री क्वेश्चन आस्ता है। 7 नंबरटा तले कोन हेजिवो आंसर ए हेजिवो। 8 नंबरटा हम देखिए व्हिच लार्वा स्टेज एसला तो क्वेश्चन दोसो ना नहीं। तो मु कहिथि लार्वा स्टेजेस केबे भी छाड़िबोनी ग्रुप रे मध्ये मु छाड़थिली जे सीक्वेंस रे मध्ये मन रखियो कहिथि देखो एठी आज जे क्वेश्चन तापर आउर कथा मु मेंशन करिथिली मध्ये तुमको जो दिया हितला टेक्निकल चैनल मध्ये मु छाड़थिली जे सेट लिखा हितला जे वेक्टर आ को स्टेजेस रे इन्फेक्शन करूची को स्टेज रे एंट्री करूची सेगुडा मध्ये ध्यान दबो हैला। तो जो मन देखिथिबे से वीडियोटा टिके रियलाइज करथिबे एग्जाम होले जाइगिना अवश्य। तो फेशियल हेपाटिक एक्टिवली पेनिट्रेट करता है स्नेल को स्टेजेस रे बोले से मिरासिडियम कोडाल मिरासिडियम स्टेजेस रे करता है। तो 8 नंबर कोन हिजिवो बी हिजिवो एटा आंसर हैला। नेक्स्ट देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एटा को मध्ये हम एटा अवश्य मु स्पेसिफिकली पढिनी किंतु एटा प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन जेतो करला लगु सेतो गुड आसीतला लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आसीतला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व आसीतला सेही मु ए कांसेप्ट को पढि देतिली हैला। तो जो मैंने पढ़ी थे प्रीवियस क्वेश्चन गुड़ा डिस्कसन करथिबे तो समान कोई क्वेश्चन आराम से आस्तिबो। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो ऑकर्स होइन केतल कहितु जेतल कैरिंग कैपेसिटी लिमिट ग्रोथ कर दितो सेतल कैरिंग कैपेसिटी पर्यंत जेतल ग्रोथ रे कैरिंग कैपेसिटी पर्यंत पहुंची जिवो सेतल ग्रोथ रे एमती सैचुरेशन हिका हमरो धीरे धीरे कमे किंतु जेते पर्यंत रिसोर्स हला अनलिमिटेड थिबो सी एमती एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जे शेप कर ग्रोथ कर देखुतु। तो हमर रिसोर्स आर जेतल को अनलिमिटेड थिबो सी एक्सपोनेंशियल हला जेतल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर कहला माने सी नंबर आंसर हिजो जोटी की कैरिंग कैपेसिटी लिमिट कर दबो ग्रोथ रो हला। नेक्स्ट हम छिबा स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स स्टैंडर्ड डेविएशन भी देइथिल ना सरी हला। देखो एटी कोन स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन आछे स्टैंडर्ड डेविएशन कहला मानकू हमरो कोन होचे मेजर कोन मेजर करे से मीन कोन वेरिएशन देखौची बा कोन डिस्पर्स होचे सेटा को देखैते आंसर हिजो बी 10 नंबर कोन हेउची बी। नेक्स्ट होची स्टूडेंट्स टी टेस्ट लिखले सेटी टी टेस्ट स्टेप टेस्ट आसीला ना टी टेस्ट स्टूडेंट टी टेस्ट इन स्टूडेंट टी टेस्ट इज एप्रोप्रिएट व्हेन। तो टी टेस्ट केते बेले एप्रोप्रिएट होची जेतल का हमरो कोन होबो ना सैंपल साइजटा स्मॉल रहिया दरकार आ वेरिएशन हमको जण नथियो सेही टाइम रे ही ए जिंसटा हमें टी टेस्ट करियाटा को एप्रोप्रिएट होइता ओ आंसरटा भलो भाबरे सेतो हमको जणा पड़िबो हैला। आ जनरली 30 रु जदि कम होची ताले से स्मॉल सैंपल रे हमें एई टी टेस्ट अप्लाई करथांती। फीचर्स ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा शोज सिमिलरिटी बिटवीन। तो ट्रोकोफोर लार्वा कार कार एठी देखो से लार्वा कॉन्सेप्ट पय आसला तुम यदि जानि हां तो जे मोलस्का और एनलिडा मान कर ही ट्रोकोफोर लार्वा देखा जाय तुम तो मु स्पेसिफिक लिखितली मते ट्रोकोफोर लार्वा टिके देखि ना जीवन ट्रोकोफोर लार्वा क्वेश्चन आसे। तो ट्रोकोफोर लार्वा तुम यदि जानि हां तो एनलिडा मोलस्का तो आराम से मारथां तो 12 नंबर बी बोली बुझ कि नहीं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन छिबा प्लानेरिया लार्वा देखो प्लानेरिया लार्वा पुनी आसला लार्वा। तो प्लानेरिया नॉर्मल एटा तो तुम जानिछो कोन देखा जाय रिजेनरेशन शो करे एटा तो सिंपल क्वेश्चन छोटो पड़ी पड़ी आछो प्लस 2 बाकर ही आराम से कर गैप जंक्शन फॉर्मेट एटा ही मध्य लिखितली हैला। गैप जंक्शन कथा ही मु लिखितली सेठी जो जो डेस्मोजोम
ଗ୍ୟାପ୍ ଜଂକ୍ସନ୍ ଏସବୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଜଂକ୍ସନ୍ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ଆନିମାଲ୍ ସେଲ୍ ଆମର ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଜଂକ୍ସନ୍ କାମ କ'ଣ ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆକାରରେ କାମ କରିଥାଏ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଆୟନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଜଂକ୍ସନ୍ ସେଲ୍ ଭିତରେ କନେକ୍ସନ୍ କରିଥାଏ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଟୁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ହେଲା। ସେଟାକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଜଂକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। 15 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଫ୍ୟୁଲେଜେନ୍। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ପଢ଼େଇନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ପଢେଇଛି ସିଓର ଆଇଦର ବଟନୀର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିମ୍ବା ଜୁଲୋଜି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଗୋଟେ DNA ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଷ୍ଟେନିଂ ରେ। ସେ ଷ୍ଟେନିଂ ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ଯେତିକି ଆମର ଷ୍ଟେନିଂ ସବୁ ଅଛି ସେଇ DNA ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ। ତ ସେଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଫ୍ୟୁଲେଜେନ୍ ଷ୍ଟେନିଂ ଗୋଟେ। ତ ସେଇ କଥାରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ସିଏ କରିପାରିଥିବ କିନ୍ତୁ ମେ ବି ଟିକେ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ତ ରିସେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ରିସେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିବ ତ ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଜି ହେଇଯିବ। ତ ଏସିଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ ଅଫ୍ DNA ର ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଫ୍ୟୁଲେଜେନ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟେନିଂଟା କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ କରିକିନା ଇଏ ଷ୍ଟେନିଂ କରିଥାଏ। 16 ନମ୍ବର ହେଲା ଫିଚର୍ସ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ ପ୍ରୋଟୋଥେରିଆ ଫ୍ରମ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇକିନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମାମାଲ୍ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋଟୋଥେରିଆ ମେଟାଥେରିଆ ଏଇ କଥାରୁ ମୁଁ 2-3 ଥର କହିଛି ଯେ ଏଇଟାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ସବୁ ଥର ଆସୁଛି ତ ଟିକେ ଦେଖିନା ଯିବ। ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋଥେରିଆଟାକୁ ଥେରିଆଟାରୁ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ କରାଉଛି ବା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରାଉଛି ତ ସେଇଟା ଉପରେ ସେ କହିଛି। ପ୍ରୋଟୋଥେରିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଥାନ୍ତି ଏମାନେ ଯେଉଁ ମାମାଲ୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏଗ୍ ଲେ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଗ୍ ଲେ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ ଲେ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋକା ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଡି ନମ୍ବରଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଆନ୍ସର ହଉଛି 16 ନମ୍ବରଟା ଡି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 16 ନମ୍ବର accessory respiratory organs are adaptation to ଦେଖ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କମନ ଗୋଟେ ମାନେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିବା ଆମେ କି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତ ମାନେ କମନ ସେନ୍ସରେ ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖ accessory respiratory organs ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ respiratory organ ମାନେ ଜେନେରାଲି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ। ହାଇପୋକ୍ସିଆ କ'ଣ ଯେତେବେଳକୁ ଲୋ ଅକ୍ସିଜେନ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋ ଅକ୍ସିଜେନ ଥିବ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ପାଣିରେ ରହୁଥିବେ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନରେ ରହୁଥିବ ହାଇପୋକ୍ସିଆ କଣ୍ଡିସନ ଜେନେରେଟ ହଉଛି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ହିଁ accessory respiratory organଟା ୟୁଜ କରିବ ନର୍ମାଲ ଆଡାପ୍ଟେସନଟା। ତ ଏଇଟା ବି କମନ ସେନ୍ସ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ସି ନୋଟ ଆନ୍ସର ତୁମେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତ। ବାର୍ଡ ମାଇଗ୍ରେସନ ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ବାଇ ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ମୋତେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କର୍ଟିସୋଲ୍ ଦେଇଛି ହେଲା କର୍ଟିସୋଲ୍ କହିଦେଉଛି ତ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଟିକେ ମେନସନ୍ କରୁନି ତ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ଯାଉଛେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମୋତେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବି ଏବେ ଧରିକିନା ଚାଲିଥାଉ। ତ ଅଫିସିଆଲ ଆନ୍ସର କିଏ ଆସିଲା ତମାନେ ଦେଖିନା ଜାଣିଯିବ। ତ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଏଇ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ବି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ କିଛି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ତ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ କ'ଣ କରେ ଯେଉଁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଯେଉଁ ସେ କହୁଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିଁ ଲାର୍ଜ ଆମର ଏରିଆ ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ପୁଣି ଡିଭିଜନ ହେଇକି ଯେତିକି ସବୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥାଏ। ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଥା ସେ ମେନସନ୍ କରିଛି ହେଲା। ଏଇଟା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେତିକି ସବୁ ଆମର କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଉଛି କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଖାଉଛି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସିମିଲାରିଟି ରହୁଛି। ତ ସିମିଲାରିଟି କେମିତି ଆସିଲା ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକେସନରେ ରହୁଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ହେଇକିନା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିକିନା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମ୍ୟାନରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଦେଖିକି ପରେ ଦେଖିକି ଡିପ୍ଟ ହେଇକିନା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଗଣ୍ଡାବାନା ଏମିତି ସବୁ 2-3ଟା ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଗଣ୍ଡୱାନା ବାଲାରୁ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଡ୍ରିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି। ହୁଇଚ୍ ରିଲିମ୍ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ରିଲିମ୍ଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ ଥାଏ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଢ଼ିପାରିବ ତ ପଢ଼ିପାରିବ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିବ ବୋଲି ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ହୁଇଚ୍ ରିଲିମ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଲେକ୍ ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାଲ ମାମଲ ତ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାଲ ମାମଲ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉମାନଙ୍କର ନଥାଏ ଯୋଉ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ରିଲିମ୍ରେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି ତ ଏମାନଙ୍କର ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ସି ହେଲା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ଏନାଲଗସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଇଟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିପିଟେଡଲି ସେମିତି ଆସିଥାଏ ଜିଓଲୋଜିରୁ ଆସିଛି। এইটা মধ্যে ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲି ଏନାଲଗସ୍ ଅର୍ଗାନ ହୋମୋଲଗସ୍ ଅର୍ଗାନ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ନିହାତି ଦେଖିବ। ଏନାଲଗସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏରାଇଜ୍ ଅଭିଆ ଏନାଲଗସ୍ ଅର୍ଗାନଟା କେମିତି କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଥ୍ରୋରେ ଆସିଥାଏ ବା କନଭର୍ଜେନ୍ସରୁ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏନାଲଗସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ତାଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ ଯେ ହୋମୋଲଗସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସମାନ ଥିବ ଫଙ୍କସନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଉଲ୍ଟା ଫଙ୍କସନ ହେଲା ଆମର ସିମିଲାର ଥିବ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ ହେଲା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ ବା ଅରିଜିନ୍ ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ। ଧର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନେଇଯିବା ଧର ଇନସେକ୍ଟର ତାର ୱିଙ୍ଗ ଆଉ ବାର୍ଡର ତାର ୱିଙ୍ଗ ନେଇଯିବା ତ ଇନସେକ୍ଟର ୱିଙ୍ଗ ହେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଅରିଜିନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଇଏ ହେଲା ବାର୍ଡସ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ କ'ଣ ସମାନ ରହୁଛି। ଫଙ୍କସନଟା ତାହେଲେ ସମାନ ରହିବ ଫଙ୍କସନ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନ୍ ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ହେଲା କ'ଣ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ମାନେ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅରିଜିନ୍ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ପାଇଁ ସିମିଲାର ପ୍ରେସର ଯଦି ପଡୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସେମାନେ ଫଙ୍କସନ ତାଙ୍କର ସମାନ ଥାଏ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ସେଟା କୁହାଯାଏ।
नेक्स्ट आम जी मामालियन रेडिएशन ये दिए सिलेक्शन मामालियन रेडिएशन पोस्ट मेसोजोइक लिंक्ड टू मामालियन रेडिएशन पोस्ट मेसोजोइक लिंक्ड हाँ यहीटा मुझे तो आमर दे नी ये जिन तो यहाँ कौन आंसर एंडोथर्मिक तो जो मामालिया मानकर जो मेसोजोइक पर जो लिंक रोचे से एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म माने जेनेरेट जो कि ब्लड वार्म जेनेरेट पूर्व कौन होता ब्लड वाला कोल्ड ब्लडेड वाला ऑर्गेनिज्म जेनेरेट डिसरप्शन ऑफ एटी मु इनडायरेक्टली कही जो आमर कौन जे जियोलॉजिकल टाइम स्केल टाको टिके निहाती देखि दियो तो सेटार लिंक रोचे किंतु एते माइंड से तो एग्जाम रे हेबो तो काम करनथिबो ठीक है छाड़ नेक्स्ट आम जी डिसरप्शन ऑफ टाइट जंक्शन इन रिनल ट्यूबुलर एपिथेलियम वुड मोस्ट लाइक टू टाइट जंक्शन कथा पुणी देखिछ ना ए रिलेटेड क्वेश्चन आसिला तो टाइट जंक्शन जो होची रिनल ट्यूबुल जो हमरो किडनी रे जो ट्यूबुल रहउची सेठी एपिथेलियम वुड मोस्ट लाइक तो ए टाइट जंक्शन काम या होची से जो सील करके जेती सब स्पेस गुडा अछि सेडा को सील करके एपिथेलियल सेल गुडा को हमरो लीक हेबारु प्रिवेंट करता है किंतु जेतो से कहउची जे डिसरप्शन हे गला टाइट जंक्शन ता जो डिसरप्शन हे जाउची ताहले डिसरप्ट हे जिवो ये एपिथेलियम ता एपिथेलियम जदि डिसरप्शन हे जिवो ताहले से कोन अटके परिबो कि जहां भी हमरो डिफ्यूजन गुडा को सॉलिड गुडा को डिफ्यूजन हमारो अटके परिबो नहीं ताहले कोन हे जिवो इंक्रीज पैरासेलुलर डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स हला जो स्पेस गुडा को से सिलिकॉन रुकला रखि परिबो नहीं तो नॉट वाला माने कोन हो इंक्रीज हो डिफ्यूजन सी नोट आंसर हे जिवो व्हिच फीचर डिस्टिंग्विश कार्टिलेज फ्रॉम बोन which feature distinguish अच्छा कार्टिलेज और बोन ভিতরে ডিফারেন্স কোন এটাই মধ্যে দেখো এই টাইপ क्वेश्चन মু কইতলি যেতক एनुअल फिजियोलॉजी কথা কইতলি कार्टिलेज बोन रो क्वेश्चन आसे तुमको कहितला तो सेटा टिके इंपोर्टेंट भाबरे पढि बोली कहितला तुमको सेठी मंदरे आउथरे क्वेश्चन आसे कार्टिलेज बोन रे कोन कोन ना भास्कुलाइजेशन ता नॉर्मली कार्टिलेज रे जो ब्लड वेसल सेंती सप्लाई एते न थाए किंतु बोन रे सप्लाइजेशन थाए जोटी भास्कुलाइजेशन कथा कहा होची हला सेठी हमें प्रीवियस जेतक क्वेश्चन करते सेठी हैबरसन जो कथा भी कहितला ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା ହାଇବରସନ୍ କେନାଲ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ କଥା ଆସିନଥିଲା ନା ଏଚ୍ କେନାଲ ବା ହାଇବରସନ୍ କେନାଲ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଏମିତି ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅସ୍ଟିଓକ୍ଲାଷ୍ଟ ମେଡିଏଟେଡ୍ ବୋନ୍ ରିଜର୍ଭସନ୍ ପ୍ରାଇମରଲି ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଅସ୍ଟିଓକ୍ଲାଷ୍ଟ ମେଡିଏଟେଡ୍ ବୋନ୍ ରିଜର୍ଭସନ୍ ପ୍ରାଇମରଲି ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସିଡିଫିକେସନ୍ ଲାକୋନା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏହାର ଏ ତ ରିଜର୍ଭସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଏସିଡିଫିକେସନ୍ ଲାକୋନା କରିଥାଏ ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ 25 ର ଏ इन मसर कंट्राक्शन देखो मसर कंट्राक्शन को पुनी स्पेसिफिक इंपोर्टेंस देख लीजिए एटो क्वेश्चन आसे तो पढ़ी तो निहाती भाବରେ देखो पुनी क्वेश्चन आसी मसल कंट्राक्शन कैल्शियम बाइंड कहा सहित करे ट्रोपोनिन सी सहित बाइंड करे ना ट्रोपोनिन सी सहित बाइंड करूची हमर जेतरो को बाइंड करथाय से ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स सहित ही बाइंड करथाय हैला यार जैगिन भलस देखबे एडा सब एक्ट करथांती एडा सब प्रोटीन एक्टिन माइसिन ट्रोपोनिन एडा सब ट्रोपोनिन सी सहित बाइंड करथाय आंसर इज सी द एक्सन हिलॉक इज द usual site of action potential initiation due to एठी कोन पे एक्शन पोटेंशियल एक्शन हिल पकर कि ट्रांसफर होछि कि पेना सोडियम चैनल बहुत गुड थांती वोल्टेज गेटर सोडियम चैनल थांती एठी तुमको कहितली जे न्यूरॉन स्ट्रक्चर पढिना जीवो एक्शन एक्टिव एक्शन पोटेंशियल ए गुडा को केमती होछि से जिंस पढिना जाइथियो क्वेश्चन देखछन ना सी रिलेटेड है जो जो टॉपिक गुडा कहैतला जोन कि बोलस से जुडा को के ब्रश अप करिथिबे लास्ट टाइम बहुत बढ़िया भाबरे एग्जाम ताको जाइथिबो माइलिन इंक्रीजेस कंडक्शन वेलोसिटी मेनली माइलिन जो थाए माइलिन सेट थाए न्यूरॉन उपरे से वेलोसिटी को इंक्रीज करता है तार रीजन कोन ला तार रीजन कोन बोली से बजाछि इंक्रीजिंग सोडियम डिफ्यूजन को इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस इंक्रीज मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस इंक्रीज मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस से एक्चुअली मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है आंसर डी है मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस को जो माइलिन सेट रहला से लिपिड ता ही तो मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस को अधिक बढ़िता है which hormone is produced in hypothalamus but released from posterior pituitary एटा तो तुम जानछ न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन मध्ये कहै छै कोडा ऑक्सीटोसिन आ हला जो एडीएच हार्मोन ता हला जोटी कि हमरो हाइपोथैलेमस से तयारी होय किंतु से माने पोस्टीरियर पिट्यूटरी रु सिक्रेशन हेतांती हला नेक्स्ट हला ओव्यूलेशन इज मोस्ट डायरेक्टली ट्रिगर्ड बाय ओव्यूलेशन ता कहा द्वारा माने ओव्यूलेशन हापे ट्रिगर हेतै एलएच पे हला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे ए जिंसरा बेसी हमरो सिक्रेशन हेतै एस्ट्रोजन ड्रॉप तो नहीं एलएस सर्ज पे ए जिंसटा हेतै ओरे देखिर पुनी एस्ट्रोजन पिक करियो पुनी प्रोजेस्टेरोन ये करियो सेटा ओव्यूलेशन परे परे व्हिच हार्मोन एक्ट भाया मेम्ब्रेन रिसेप्टर
ह्विच हार्मोन एक्ट बाय मेम्ब्रेन अच्छा मेम्ब्रेन रिसेप्टर द्वारा को हार्मोनटा ये करता है तो ये देखो नॉर्मल देखो आपन सेकंड एटी मेंशन कर दी सेकेंडरी मेसेंजर पाथवे लिखि दी सेकेंडरी मेसेंजर पाथवे टिके कॉमन सेंस रे टिके भाव हला तो जो मानकर सेकेंडरी मेसेंजर दरकार होछि माने एटा धरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा रहिला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोरे पास करिया पे से तार नेचर टा कोन हिते दरकार से कोलेस्ट्रॉल वाला माने हिते दरकार बा कोर्टिसोल वाला हिते दरकार बा हमें एमती कहि परिबा लिपिड लविंग हिते दरकार सेमथिले सेन लिपिड थोरे पास कर परिबो हला बा आम कहि परिबा हाइड्रोफोबिक नेचर हिते दरकार तो ये तुम देख कोर्टिसोल जापर आराम से आल्डोस्टेरोन ये भी कोर्टिसोल नेचर ये जापर एप्रिन एप्रिन टेस्टोस्टेरोन टाइम कोर्टिसोल नेचर एमाने जापर तीन आराम से एमान को दरकार नहीं कि एमाने पास कर परिबे मेम्ब्रेन थ्रू रे लिपिड लविंग किंतु एप्रिन एप्रिन से होची वाटर आम कहि परिबा हाइड्रोफिलिक वालाटा हार्मोनटा तो या दरकार हो कि ये मेम्ब्रेन थ्रू पास कर परिबनी या गोटे रिसेप दरकार हमर लिगेंड बाइंड करबा तो एठी देखिए सेकेंडरी मेसेंजर जीवा दरकार हो तो एपिन एप्रिन टा आंसर हो 31 डीटा मतलब एगुड़ा तो सब पढ़ेनी सेल कम्युनिकेशन बा सेल सिग्नल एजेंसी रा पढ़ेनी आपको मु पढ़ेबी पूरा क्लास में एटा क्लास में आनी व्हिच फैटी एसिड वुड इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइड मोस्ट इफेक्टिवली व्हिच फैटी एसिड वुड इंक्रीज अच्छा इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइड केतो आछे जेतो हमरो जो लॉन्ग अनसैचुरेटेड हिथिबो आ तांकर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हेबो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड माने तांको भीतर एमती डबल बॉन्ड रही कि किंग फॉर्मेशन हला माने से बेसी फ्लूइडिटी नेचर शो करिवो तो जो माने लॉन्ग चेन ऑन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड थिबो सेटा हिजबो आंसर हला आंसर इज फ्रॉम 32 सी हला नेक्स्ट हम देखिबा व्हिच इंटरेक्शन प्राइमरी स्टेबलाइज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अच्छा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड एटा भी क्वेश्चन बोधे हम करथिले बोधे ना कोन हाइड्रोजन बॉन्ड टा स्टेबलाइज करथे जदि कोन नथिया प्रैक्टिस क्वेश्चन रे मे भी करथिया बोधे तो गेट फेटर बोधे क्वेश्चन आथल धरे ए रैपिडली रीएसोसिएटिक फ्रैक्शन इन कॉट कर्व कॉरेस्पोंड टू कॉट कर्व हलाटा डीएनए रिलेटेड आसुची तो कॉट कर्वटा हला कोन हाईली रिपीटेटिव डीएनए थाए सिंगल कॉपी जीन्स थाउची तो कॉट कर्वटा मेनली कोन हाईली कॉपी एटी तो प्रीवियस क्वेश्चन करा करिथिले कॉट कर्व थाउरे हाईली रिपीटेटिव डीएनए पे ए कॉट कर्वटा এই ফ্র্যাকশনটা দেখা যায় বাস এটা দেখো এটা তো আমি কইবা রিপিট क्वेश्चन हैला रिपीट क्वेश्चन যেতো কেএম 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 जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन যেতো কইছিল কোড স্ট্রেটলি পড়াইଥିଲି हैला এটা ডাইরেক্ট হি বুঝিଥିଲି পরে লেখিকিনা পড়ি যাইଥିଲି সবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন এটা হাফ ভি मैक्स हैला সেই জিনিসটা আমি সবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন 1000 বার কইতেছি তো সবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন ভি मैक्स র হাফ করে দেবনি সেটাকে বুঝলেন সেটা সবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন এটা হাফ ভি मैक्स সবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন র তার কেএম ভ্যালুটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় आंसर হলো বি which integumentary derivative is homologous across reptiles birds and mammals बुझी पाले नहीं which integumentary derivative is homologous across अच्छा integumentary derivative टा जो थाए सेवन को भितरु कोटा एई तीन जन को जाकर reptiles मान करी birds मान करो mammals मान करो समान होची feather here feather तो हमरो नहीं क्लो नेल हाँ क्लो नॉल एई जिंस को तमे mammals मान कोठी आ birds एई मान कोठी समस्त कोठी देखिया में कॉमन पाइबो केल feather भितर टा समस्त समान न थाई पारे हला तो एई आंसर टा हिजो क्लो एंड नेल लेंटिसन भी अलग अलग रोची तो सेति क्लो एंड नेल टा बेसी टिके प्रिपेयर लागुछ सेटा आंसर हो visceral arches primarily contribute to formation of visceral arches कोन फॉर्मेशन करथाय गोटे कलर अपेंडिकल डर्मल बोन्स फेरेंजियल स्ट्रक्चर visceral arches रे फेरेंजियल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करबारे हेल्प करथाय 37 टा हला आंसर ठीक नेक्स्ट हम देखिए व्हिच एवटिक आर्च परसिस्ट एज द सिस्टमैटिक आर्च ऑफ बार्स उनका सिस्टमैटिक आर्च एटा मध्ये सिस्टमैटिक आर्च बहुत इंपोर्टेंटली क्वेश्चन आसी दे सब थरो राइट फोर्थ आर्च टा सेटा होची सिस्टमैटिक आर्च फॉर्मेशन करते बार्स मान करो এটা कंपैरेटिव एनाटॉमी रे सब आसी क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ किडनी इवोल्यूशन इन वर्टिब्रेट এটা তো বহুত ইজি क्वेश्चन এটা ডিসকাশন মধ্যে আমি বহুত করছেন যেতে কিডনি কথা আসলা বেলকু ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରୋନେଫ୍ରନ୍ ମେଜୋନେଫ୍ରନ୍ ମେଟାନେଫ୍ରନ୍ କୁଆଡେ ଗଲା ଖୋଜ ପ୍ରୋନେଫ୍ରନ୍ ମେଜୋନେଫ୍ରନ୍ ମେଟାନେଫ୍ରନ୍ आंसर इज कोन डी ହେଲା which brain region is more developed in mammals तो को region टा brain रो cerebrum टा सब डेवलपमेंट एक थाए ना हला cerebrum टा जो रहला ऊपर जो हमरो चटा पट रहउछ सेटा हमरो cerebrum टा सब डेवलप cerebellum कहि देबनी हला cerebrum और cerebellum अंदर cerebellum टा हला जो हमरो posterior जो रहला हाइंड ब्रेन पार्ट टा बास तापर ऑडिटरी रिसेप्टर आर लोकेटेड इन এইটা তো কোশ্চেন এটা আমি বহুত থর ডিসকাশন করছি এটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা পাইছিল ଦି ଥର organ of cortex ରେ ডিসকাশন করা হଉଛି ଆଉ आंसर ହେଇଯିବ ସେରେ which mechanism is primarily responsible for glucose exhaustion এইটা মধ্যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন কলার আমি ডিসকাস করছি
which mechanism is primarily এটা previous question बोधे gate बोधे question कला कमे सेटा बोधे करथिले हैला primarily responsible for glucose absorption in small intestine कला कोन SGLT हैला secondary active transport SGLT रे द्वारा ट्रांसपोर्ट होइते सिंपल डिफ्यूजन तो हबने बड़ बड़ लार्ज ये गुडा फैसिलिटी डिफ्यूजन माने एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी एठी सोडियम पोटेशियम में एठी हम मेनली SGLT द्वारा होइते नेक्स्ट हम देखिया 43 which vitamin requires intrinsic factor दरकार है एब्जॉर्प्शन पे विटामिन B12 पे बा सियानोकोबालामिन पे इंट्रिंसिक फैक्टर दरकार है एब्जॉर्प्शन करिया पे कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग रिड्यूसेस ऑक्सीजन डिलीवरी प्राइमरली बाय तो एई जिंस जो कार्बन मोनोक्साइड जो आटा पढि तुम फिजियोलॉजी रे तो एठी जो कार्बन मोनोक्साइड जदि हम इनहेल अधिक करू तो पॉइजन कंडीशन तैयारी होते तो यहाँ कहा से बोली से क्वेश्चन पचार तो यहाँ जो कम हिमोग्लोबिन एफिनिटी तुम जान जे नॉर्मली ऑक्सीजन अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिकार रुए कार्बन डाइऑक्साइड अपेक्षा कार्बन मोनोक्साइड अधिकार रुए तो कार्बन मोनोक्साइड थोड़े हिमोग्लोबिन बाइंड करला माने आ से छाड़े नहीं तो सी जाकिना नेक्स्ट आउ ऑक्सीजन सहित बाइंड कर तो से साइंगे नहीं मरीज जदि किसी कार्बन मोनोक्साइड रो लेवल 0.03% रु अधिका मे बी मन पड़ से बाइंड कर अधिका हो कार्बन मोनोक्साइड तो सी डेथ कर से एनवायरमेंट रे व्हिच रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय स्पाइरोमेट्री बोधे स्पाइरोमेट्री तो व्हिच रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय स्पाइरोमेट्री रेसिडुअल वॉल्यूम स्पाइरोमेट्री द्वारा हमें रेसिडुअल वॉल्यूम बाहर कर परिबा ना स्पाइरोमेट्री द्वारा रेसिडुअल वॉल्यूम टा केते रहउजे सेटा हमें माप परिबा द मेजॉरिटी ऑफ filter लिखा छै मेजॉरिटी ऑफ फिल्टर ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब इन तो मेजॉरिटी फिल्टर ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब तो कोड पीसीटी रे हमरो ग्लूकोज गुडा कमे रीएब्जॉर्ब होंदर ही दे प्रोक्शन कॉलमेटर ट्यूबुल्स रे हला which system provides the major buffering capacity of blood एटा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बफर हमर जो कोन बाइकार्बोनेट बफर ना फॉस्फेट बफर तो की एक्चुअली बफर बढ़िया काम करछ बोली से क्वेश्चन थे बाइकार्बोनेट बफर टा हला एटा फिजियोलॉजी क्वेश्चन होई आछ इंडिविजुअल्स विथ ब्लड ग्रुप ए बी आर एटा तो छुआ क्वेश्चन ए रिसेंट ही मैं और क्लास नैतिली ए बी ब्लड ग्रुप रे एग्जाम रो गुटे दिन ना 2 दिन पूर्व क्वेश्चन नैतिले एटा छुआ बड़ पुणी पड़ी आछ इंडिविजुअल्स मानकर ए बी जो मानकर थिबो सन कोन यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जिवो हला ठीक सेटा कोन कहा जिवो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जिवो देखो ये जो लेकिन ए बी एंटीजन एगुड़ा सब जिनस अछि ने एगुड़ा से रिलेटेड मु ए बी ग्रुप रे ही गुड क्लास नै थिले एग्जाम पूर्व वी स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश कैटाबोलिज्म फ्रॉम एनाबोलिज्म तो एमन को स्टेटमेंट भीतर कोडा कैटाबोलिज्म आ एनाबोलिज्म भीतर डिफरेंशिएट करछु बोले से क्वेश्चन आछ कैटाबोलिज्म जनरेट्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस एनाबोलिज्म यूजेस देम हां कैटाबोलिज्म ब्रेक डाउन करथे और सेटा को एनाबोलिज्म यूज करथे हो कि नहीं आंसर इज एटा सी which shuttle primarily transfer cytosolic NADH and electrons into mitochondria in liver and heart. Which shuttle cytosolic NADH electrons mitochondria liver होइते एटा malate aspartate shuttle टा ही एटा हमरो B नंबर आंसर it be considered the energy currency because कोन पे एनर्जी करेंसी हिसाब कंसीडर करा होची कि पने हाइड्रोलाइसिस हला मन कपल ऑफ फ्री एनर्जी से रिलीज करता है बी नंबर हिज आंसर 51 रो 52 टा होची द रेट लिमिटिंग एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस बस एटा तो रेट लिमिटिंग जो 1 थिला 3 थिला आउ 10 नंबर स्टेप थिला एटा तो रेट लिमिटिंग थिला ना तो एठी ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम कोन पीएफके एटा 3 नंबर वाला एंजाइम टा ग्लाइकोलाइसिस कहितलन तो ग्लाइकोलाइसिस पढाई सब तर क्वेश्चन लिखितली देखो ग्लाइकोलाइसिस लिखितला नै इसे लिखितला नै जागिन टिके देखिबो से वीडियो रे माने मु टेलीग्राम चैनल रे जागिन जॉइन हिजिवो बायोटा बोली से बायोटा करे मु छाडितली पीडीएफ टाइम मध्य से जागिन टिके देखिबो टीसीए रो मु कहितली 100% पढिबो ग्लाइकोलाइसिस रो पढिबो टीसीए रो पुनी क्वेश्चन है व्हिच स्टेप ऑफ द टीसीए साइकिल प्रोड्यूसेस जीटीपी एटी ए टाइम मध्य क्वेश्चन आतला जीटीपी कोटा प्रोडक्शन होछि गोटे स्टेप ही प्रोडक्शन करथाय कोड प्रोडक्शन करथाय सक्सिनेल को एंजाइम रो सक्सिनेट हैला तो सही टाइम रे जीटीपी प्रोडक्शन करथाय एटी प्रोडक्शन करथाय नेक्स्ट है द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे प्राइमरली जेनेट्स तो पेंटोज फॉस्फेट बा जो हम पेंटोज फॉस्फेट प्राइमरली कौन जेनेट करथाय बोले से क्वेश्चन में पचारछि तो एनएडीपीएच एंड राइबोज फॉस्फेट एई राइबोज 5 टा देखला मन तो आराम से जानि बता दरकार जे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे रे बुझन पाथवे रे भितरु से एते किछि पचारनी ओवरऑल जदि टिके जणे पढि देथिबो ताको भी टिके जिंसटा करिया पे टिके जे हेताना
which molecule is the fast stable intermediate of fatty acid synthesis fatty acid synthesis ର କୋଉଟା intermediate ବୋଲି ସେ question ଆସିଛି ତ ଏଇଟା ବି ତ କରିଥିଲେ ବୋଧେ previous question recent ହିଁ ତ previous question ହିଁ କରିଥିଲେ ମାଲେରିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତିନିଟା ପାଖାପାଖି previous question ହିଁ ପାଖାପାଖି related ପଡ଼ିଯାଇଛି which amino acid is purely ketogenic ଏଇଟା ବି ଆରାମସେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ amino acid classification class ଟା ନେଇଥିଲେ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ର ଯେ କରିଥିବ ମାନେ amino acid ରୁ ପଢିଲା ମାନେ କି ତୁମେ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି ର ଆଣ୍ଟିବଡି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ପଢିଲା ମାନେ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एई जिनस पढ़ला माने जदि जे मो क्लास देखिछ माने 100% करिना आसीबो व्हिच एमिनो एसिड इज प्योरली कीटोजेनिक तुमको कोड वाइज मन रखिया पे कहिदिली हैला कोड वाइज मन रखिया पे तुम कहिदिली जे तुमे केएल बोली मन रखियो हैला केएल हैला हमरो लाइसिन और एल होची ल्यूसिन तो आंसर आइजो सी व्हिच कॉम्प्लेक्स ऑफ ईटीसी डज नॉट पंप प्रोटॉन एमन को भितर ईटीसी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भितर कोटा हमरो प्रोटीन पंप करे नाही तो आंसर इज बे कोन बी कॉम्प्लेक्स 2 टा ये हमरो प्रोटॉन पंप करे नाही कॉम्प्लेक्स 2 टा जो अछि एठी जो हमरो रहिला एठी गुटे एमति न थाए इनटू 3 इनटू 4 ये करे नाही सियानाइड इनहिबिट्स ऑक्सीडेटिव एटा मध्ये ईटीसी चेन रे मध्ये सियानाइड टा इनहिबिट करते फॉस्फोराइल बाय ब्लॉकिंग को एटा अवश्य मु नाही पढे हां पढेइतला एक कथाडे भी मेंशन करथि मु देखो क्लास नै ईटीसी ऊपर बोधे हला तो सतरा को मते पढेछि बोधे 58 डी नोटा हाउस को कॉम्प्लेक्स बी जेरिसियन आइटम रिमेन करता है व्हिच चेक पॉइंट एंश्योर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीशन अच्छा एटा सेल डिवीजन आछे सेल डिवीजन एटा आछे क्वेश्चन व्हिच चेक पॉइंट एंश्योर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीशन हेछि ना बोली को चेक पॉइंट रे करथाय बोली से कहूछि तो G2M हमर G1 रहिला S रहिला तब G2 रहिला S तो सिंथेसिस हे जो कि चेक पॉइंट कोन G2 रो M जतो ट्रांजिशन हबार अछि तो सेही टाइम रे हमरो ए जिंसरा एडी चेक पॉइंट ये करथाय डीएनए रेप्लिकेशन फाइनली कंप्लीट हेछि ना ठीक ठाक कंप्लीट हेछि ना बोली व्हिच एंजाइम रिजल्ट्स द सुपर कोइलिंग अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर तो को एंजाइम टा सुपर कोइलिंग अहेड ऑफ रेप्लिकेशन रिजल्ट्स एटा तो देखो मो क्लास करथिबो ना 100% करिवो जे सुपर कोइलिंग टा को रिजल्ट के करे डीएनए पॉलीमरेज हेलिकेज डीएनए लाइगेज टॉपोइसोमरेज हला एटा तो बढ़िया क्वेश्चन आराम से टॉपोइसोमरेज करथाय ए क्वेश्चन तुम देखियो माने कहिथि तुमको जे तुमे क्वेश्चन आसीबो यदि रेप्लिकेशन पब्लिकेशन उडारो तुमे एंजाइम को फोकस करियो प्रोटीन को फोकस करियो पूरा डेफिनेटली लिखि दे जिंस पर मेंशन करके टेलोमेर शॉर्टनिंग कॉजेस टेलोमेर शॉर्टनिंग टाको कौन करे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए करे रेप्लिकेटिव सेनेसेंस करे क्रोमैटिन एब्रेशन अनकंट्रोल रेप्लिकेशन कौन करथाय हला सी कौन करिवो ना रेप्लिकेटिव सेनेसेंस कर दउछ माने रेप्लिकेशन आउ हे परिबो नै सेनेसेंस माने कोन एजिंग हे जाउछ और रेप्लिकेशन के माने धीरे धीरे टेलोमेर जदी शॉर्टनिंग हे जाउछ डीएनए रो तो छोटे हे बहुत छोटे हे जिवो लास्ट से रेप्लिकेशन करे पे एते कैपेसिटी रहि नै सी नोट आंसर इज 61 व्हिच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन यूकैरियोट एटा तो आराम से क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पे कोड दरकार हेता तुमको डाटा बाइंडिंग प्रोटीन दरकार हेतियो यूकैरियोट कोइछि एटा देखो यूकैरियोट माने सिग्मा फैक्टर मार देथियो हला यूकैरियोट मेंशन करछि ओबल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन ओबल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन ओबल हाइपोथेसिस एटा मध्ये कहै छै ओबल हाइपोथेसिस कोन एक्सप्लेन करछि जे सेठी हमर जो थाए से फ्लेक्सिबिलिटी इन कोडन फ्लेक्सिबिलिटी रहिबो किंतु एंटी कोडन पेयरिंग आराम से जो मल्टीपल कोडन मध्ये हे परिबो गोटे एमिनो एसिड पे सेटा से मेनली ओबल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन कराइ थाए व्हिच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन बट नॉट यूकैरियोटिक साइटोसोलिक ट्रांसलेशन तो ए एंटीबायोटिक मध्ये हम कहितले किंतु एंटीबायोटिक जेतु बहुत लेंथी हेबो पढिया पे हम कहितले जे जदि तुम पारिबो तो पढो नहले एटा स्किप करियो बोली हम कहितले कि माने एंटीबायोटिक पढुछ बोली हम लिखितले अवश्य देखियो जे कि से पीडीएफ रे 64 कोन हला होची ना से ट्रांसलेशन टाको इनहिबिट करते के क्लोरोफिल टाको इनहिबिट करता है हला किंतु यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन पे इनहिबिट कर पारे नै आरएनए स्प्लाइसिंग प्राइमरी एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन आरएनए स्प्लाइसिंग पाई रिमूव की करे एक्जन एक्जन नहीं एक्जन टाको रिमूव कर देना प्रोटीन केमति सिंथेसिस हो रिमूव करता है इंट्रॉन टा होची हमरो अननेसेसरी पार्ट को सेटा को रिमूव करता है हला एक्जन टा होची हमरो नेसेसरी जोटा को रिना प्रोटीन तैयारी करे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग एटा मध्ये कहै देला अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग रे कोन तयारी हुए लॉस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कोन पे सेठी एक्चुअली कोन हबो ना जति हमरो आरएनए वेरिएंट्स अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हला माने मल्टीपल नंबर ऑफ हमरो वैरायटी प्रकार आरएनए तयारी परिबे तो आरएनए वैरायटी तयारी परिबो बा आरएनए वेरिएंट्स तयारी हो बोले सेटा आंसर जो कोन 66 सी व्हिच मॉडिफिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग टीआरएनए प्रोसेसिंग टाइम रे को प्रकार मॉडिफिकेशन हुए से एडिशन ऑफ सीसीएन 3 प्राइम एंड रे सीसीएन टा अगेन ऐड हुए डी नोट आंसर जो एगुला तो नॉर्मल होउची हाइपरिन कैपिंग कोलिनेशन तो हबो किंतु
टीआरएन प्रोसेसिंग मॉडिफिकेशन को 3 प्राइम एंड रे सीसीए को जोड़ा जाए এটা তো কমন সেন্স রে করি পারতাম তো ইন দ্য ল্যাক অফ এটা দেখো কোশ্চেন আসিলা না ল্যাক অফ পড়িଥିଲି লাস্ট টাইম রে ଲାକ୍ଟୋଜ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଲାକ୍ଟୋଜଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଆକାରରେ ଆକ୍ଟ କରେ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିନା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଖିନା ବୁଝିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଯିଏ ପଢିଥିବ ମୋ କ୍ଲାସ୍ 100% ଛାଡିକିନା ଆସିନଥିବ 68 ରହିଲା କଣ ସେଟାକୁ ଅପରେଟର ବୋଲି କୁହାହଉଛି କହିଲା ଛାଡିଦେଲି କହିଲେ ସରି 68 ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆମର ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଲାକ୍ଟୋଜ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସର 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 ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଲାକ୍ଟୋଜଟାକୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସର ବୋଲି ଆମର କୁହାହଉଛି ହେଲା which element can regulate transcription from a distance in eukaryote ହେଲା ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏନହାନ୍ସର କୁହାହଉଛି ହେଲା ରେଗୁଲେଟ ଫ୍ରମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ୟୁକାରିଓଟ ସେ ଏନହାନ୍ସ କରିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ହେଲା ତ ଏଇଟା ଆମର ଲାକ୍ଟୋଜଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଠିକ ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଇଯିବ siRNA mediated gene silencing involves siRNA mediated gene silencing involves ଆଚ୍ଛା ସେଟାକୁ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଇନିସିଏସନ ହିଷ୍ଟୋନିକ ନାହିଁ mRNA ଡିଗ୍ରେଡେସନ siRNA ଟା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେରିଂ RNA mediated gene silencing ଟା କଣ କୁହାଯାଏ mRNA डिग्रेडेशन कुहाଯିବ ହେଲା ଏଇଟା ବି ତ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆରଏନଏ ଟାଇପ୍ସ ପଢଉଥିଲେ ରିକମ୍ବିନେସନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ 50% ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଜିନ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟ 50% ଯଦି ରିକମ୍ବିନେସନ ହଉଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲିଙ୍କେଜ କହିଥିବ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ କୁହାଉଥିବ ନା ପାର୍ସିଆଲ ଲିଙ୍କେଜ ନା ଡବଲ କ୍ରସିଂ ଓନ୍ଲି କୁହାଯିବ ସେଠି ଆମେ କହିବା କଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ କହିବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ କି ପାଇଁ 50% ହେଇଯାଉଛି ଆମର ନ୍ୟୁ ରିକମ୍ବିନେସନ ହେଇଯାଉଛି 50% ଯଦି ରିକମ୍ବିନେସନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରହିଲା ମାନେ ସେ ଆରାମସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ ହଉଛି ହେଲା नेक्स्ट व्हिच म्यूटेशन डज नॉट चेंज एमिनो एसिड এটা কিন্তু কনফিউশন পিলা মানে ହେଇଥିବେ এটা তো হবনি ছাড়ো পার্সিয়াল লিঙ্কেজ ফিঙ্কেজ কথা মানে কমপ্লিট লিঙ্কেজ তো তুমি জানছো 100% তো নাই যে 80% পাখাপাখি 80 ରୁ 100% ପାଖାପାଖି ନିହାତି ହେଉଥିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେ 50% କହିଦେଇଛି 50% କେତେବେଳେ ହୁଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ ଯୋଉଟା ବା କ୍ରସିଂ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି which mutation ଆଉ ପାର୍ସିଆଲ লিঙ্কেজ କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳକୁ କମ 20 to 30% ପାଖାପାଖି লিঙ্କେଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ରେୟାର ନିହାତି তুমি 50% ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ লিঙ্কেজ which mutation does not change amino acid sequence तो ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ମ୍ୟୁଟେସନ ଟା ଏଇଟା ତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇଟା ମ୍ୟୁଟେସନ ଆବ୍ରିଭିଏସନ ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିଲି ଜେନେଟିକ୍ସ ରେ ଦେଖିଥିବେ ଯାଇକିନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଠୁ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲି ତମକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଟେସନ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ ହୁଏନି ଆମିनो ଆସିଡ ର ଇଭି ରିଲେସନ ଏଇଟା ବି ଦେଖ ଆସିଲା ଇଭି ରିଲେସନ ପ୍ରାଇମରୀ କହିଛି ଇଭି ରିଲେସନ କଣ କରିଥାଏ ସେ ଯୋଉ ପିରିମିଡିନ ଡାଇମର ଫର୍ମେସନ କରିଥାଏ ହେଲା ପିରିମିଡ ଡାଇମର କରିଥାଏ ଫର୍ମେସନ बी नंबर आंसर इंड्रोसोबुलर सेक्स एगुड़ा तो माने पूरा बच्चा बच्चा क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया पढ़ी थी लास्ट टाइम रे जेनेटिक्स रे इंड्रोसोबुलर सेक्स इज डिटरमाइंड बाय ड्रोसोफिला तो सेक्स डिटरमाइंड टा केमती करा जाय x/a रेशियो हैना a नंबर है जीवन सर व्हिच व्हिच ट्रेट सजेस्ट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एंटा सेटा ही पढ़ी थी देखो जन लास्ट टाइम जति मोर एक्चुअली जति अछि चैनल रे सबु नाही सबु कवर कराई नै କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କରାଯାଇଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି which trait suggest extra chromosomal inheritance ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋସୋମାଲ ଇନହେରିଟାନ୍ସ କଥା କୁହାହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା which trait suggest extra chromosomal inheritance extra chromosomal inheritance କୋଉଟା ସହ କରିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛି reciprocal cross difference mental segregation independent reciprocal cross difference ସେଟା ହଉଥିବ extra chromosomal inheritance ସେଟା ଯେମିତି ସହ କରିବା କଥା ସେମିତି କରେ ନାହିଁ ଜେନେଟିକ ମେଣ୍ଡେଲ ଜେନେଟିକ୍ସ ଭଳିଆ which possesses require direct cell to cell contact କୋଉଟା ହୁଏ ଏଇଟା ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଥିଲି तो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट कोड देखा जाए ना कॉन्जुगेशन तो ये पढ़ा ही लास्ट टाइम रे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ तो जो ट्रांसफर होता है सेठी कोन ट्रांसफर रैंडम वेक्टोरियल डीएनए फ्रैगमेंट ट्रांसडक्शन कोन होता है डीएनए फ्रैगमेंट को साइन करा होता है आंसर इज सी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आर क्रिएटेड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कोन तार से गोटे गोटे जीन और आउटे जीन को ट्रांसफर करिबा सेठी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट सर टर्म पे यूज करा जाए जे गोटे जीन और आउटे जीन को माने से विदिन जीनोम सेम जीनोम रे ही से ट्रांसफर करि परिबो हैला which test best explain cell differentiation during development cell differentiation कथा कोडा best explain करि चली से कथा होछि differential gene expression एटा होछि आंसर which egg type बस एटा उडा इंपोर्टेंट दिन करथिले एटा मु कहितले जे एई जेति कि तुमको जो फोटो उडा मु छाडितली टेलीग्राम रे पढैतला बेलू पूरा कंप्लीट ई डाटा पढैतली सब प्रकार पढैतली गोटे क्वेश्चन पूर्व थर आस्थिला से थर पढ़ेला को सब डाटा पढ़ी बुझे रिलेटेड क्वेश्चन आसूसी रिपीटेडली यहाँ निहाती भाव में नोट करते रखिए कही देख क्वेश्चन आसी व्हिच एग टाइप कंटेन्स मॉडरेट योक कन्सेप्ट मॉडरेट योक माने कौन से कह मेजर से कह तो कही तुम तो से प्रीवियस क्वेश्चन खाली आंसर ना आम सहित ऑप्शन थ्रो भी
आम तार डिटेल आम पढ़ाटा ही ठीक। द फास्ट ब्लॉक टू पॉल्यूशन इनवॉल्व्स, तो पॉल्यूशन जो हला तो से फास्ट ब्लॉक रे को प्रकार पॉल्यूशन प्रिवेंशन कराइते से कथा सी पचार। तो मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन करना এই জিনিসটা ফার্স্ট ব্লকটা করা হয়। হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজ ইজ টিপিক্যাল, হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজ ক্লিভেজ রে কইতে যে ইম্পর্টেন্ট উত্তর क्वेश्चन আসছে। তো হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজ কোठी हमर टिपिकली ऑफ मेसोलिस तले टेलोइस तले सेंट्रलिस तले एग विथ वेरी लार्ज यो को मान कोठी देखा जाए, को मान कोठी देखा जाए मेसोलिस तले एग मान कोठी देखा होछ। व्हिच स्ट्रक्चर एक्ट एज द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इन एम्फिबियंस, एम्फिबियन मानकर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कोइ देले ऑर्गेनाइजर कांसेप्ट उत्तर क्वेश्चन आसे नै देखिबो टिके इंपोर्टेंट भाबरे। तो देखो रिपीटेडली क्वेश्चन आछि। तो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोमियर सेटा कहा जाए है ये रेट मध्ये प्रीवियस क्वेश्चन मध्ये हम करथिले। फेट मैपर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फेट मैप केमती कराइते बोली से क्वेश्चन आछि। वाइटल स्टेनिंग द्वारा फेट मैप टाको मैं चिन्हा पे कंस्ट्रक्ट करथांते। व्हिच जर्नल लेयर प्राइमरली फंक्शन नर्वस सिस्टम तो जानछ एक्टोडर्म को 85 टा हिजो को ए। व्हिच प्लासेंटल टाइप अलाउज डायरेक्ट कांटेक्ट विथ मैटरनल ब्लड, व्हिच प्लासेंटल टाइप अच्छा प्लासेंटा भी अलाउड डायरेक्ट कांटेक्ट विथ मैटरनल ब्लड सहित कोटा डायरेक्टली कांटेक्ट थाए। हिमोकोरियल है हिमो सहित कनेक्शन होची हिमोकोरियल सेटा कहि रे। व्हिच कंडीशन वायोलेट द हार्डी बर्न इक्विलिब्रियम विदाउट डायरेक्टली अल्टरिंग द एलील फ्रीक्वेंसी, वायोलेट करची हार्डी बर्न लोको म्यूटेशन तो से कहूची जे पॉजिटिव इफेक्ट दबो हार्डी बर्न पे जेनेटिक माइग्रेशन पे, किंतु से चाहते रैंडोमेटिक से एटी कहची नॉन रैंडम, तो आंसर इज सी। ए पॉपुलेशन पासेस थ्रू सीवियर बोटलनेक इफेक्ट देखि जानना कहते जे बोटलनेक इफेक्ट देखिबो है फाउंडर इफेक्ट देखिबो ए दुटा क्वेश्चन आछि पडला ना क्वेश्चन। ए पॉपुलेशन पासेस थ्रू ए सीवियर बोटलनेक जागिना टिके देखिबो से पीडीएफटा जहा दिया छि एरा सब क्वेश्चन आछि ना खाली वीडियोटा जागिना टिके देखिबो। ए पॉपुलेशन पासेस थ्रू ए सीवियर बोटलनेक व्हिच इज मोस्ट लाइकली टू, तो बोटलनेक इफेक्ट कोन से माने बहुत गुड हमरो रेयर एलेज गुडा डॉस हेइ थान बोटलनेक इफेक्ट रे। adaptation radiation in most strongly associated with adaptive radiation टा कहा सहित associated है कि ना होची हमरो divergent evolution सहित adaptive radiation होची। कीन सिलेक्शन मध्ये कहता सॉरी कीन सिलेक्शन मध्ये तो मन कहितला जे अल्ट्राजन पढिना जीवो कीन सिलेक्शन मध्ये क्वेश्चन आसे। तो कीन सिलेक्शन टा इवोल्यूशन अल्ट्राजन कहा सहित से इंडिविजुअल फिटनेस नाही, इंडिविजुअल फिटनेस सहित सेठी से देखिबो नै से इंक्लूसिव समस्त को मिल मिसिकना फिटनेस टा को से बा हमें तांकर जो स्पेसिस्ट को तारो केमती से फर्दर रिजेनरेशन टा रखु से जिंस रा चिंता करे निज कथा से चिंता करे नाही। इंक्लूसिव फिटनेस लाइटिकल टर्मोटी बेसिक टिके हल्का पढ़ देथिनि तुम कर पारंतु। व्हिच इवेंट इज लिंक्ड विथ केटी मास एक्सटेंशन, केटी मास एक्सटेंशन सहित कहा सहित डायरेक्टली लिंक करी से कहूछ। तो एटा मेट्रोराइट इंपैक्ट with KT mass extinction टाइटा इंग्लिश। इवन पावलो एक्सरेटा तो छोटो पड़ी पड़ी आछो क्लासिकल कंडीशनिंग रे डग ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करथले एटाई मध्ये मु एनुअल बिहेवियर मु पढाइथिली, एटाई मध्ये मु पढाइथिली एटा प्रीवियस क्वेश्चन कोला को पढाइथिली। तमे जो मो 5000 इंपोर्टेंट एमसीक्यू रे वीडियो सीरीज रे एटा सराइता जे वागल डेंस जो करथन सेटा फुल लोकेशन को देखिया पे सब कोइ थाली। इन सैंगर सीक्वेंसिंग चेन टर्मिनेशन मेथड यारो जो रोजी कोर्स ड्यू टू साइंगर रे सीक्वेंसिंग रे केमती जो कहते हैं सब पढ़े नहीं आपको पढ़े बोली भाभी पढ़े नहीं। तो आंसर इज सी डीडीएनपी डाइडिऑक्सी जो न्यूक्लियोटाइड रोचे से ताधुर रे ही ये टर्मिनेशन कराइते साइंगर सीक्वेंस रे हेलो। व्हिच वेक्टर इज सुटेबल फॉर क्लोनिंग वेरी लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट, लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट क्लोनिंग पई कोटा हमरो करा जाय प्लस रे बैक्टीरिया हेलो बैक बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम सेटा हमरो क्लोनिंग वेक्टर को यूज कराय। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड ऑन एटा छोटो पीपीडी सुपर फॉर वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ 10 नंबर रिपीट्स एटा यूज करा जाय। 1 सेकंड हला। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेरॉइड हार्मोन्स आर प्राइमरली डिराइव फ्रॉम, स्टेरॉइड हार्मोन पूरा कोठू डिराइव हिचंद बोली से कोजी से कोलेस्ट्रॉल वाला हार्मोन हो स्टेरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल वाला हार्मोन होगा कि नहीं। तो आंसर है जो 97 वाला ए। देखो इटा आसला ना क्वेश्चन गोटे एंटीबॉडी रो आईजीई एसोसिएटेड ए जी मु कहतल एंटीबॉडी वीडियो जी देखिबो डेफिनेटली से करबा ही करबो कहतल एंटीबॉडी क्वेश्चन आसे ही आसे क्लासिफिकेशन एलर्जी पे रिस्पांसिबल था आईजीई है ना।
ସଷ୍ଟେନେବୁଲ aquaculture primarily aims to sustainable aquaculture ପାଇଁ କ'ଣ ଆସେ maximizing profit environment conservation with production ହଁ environment ପାଇଁ ଆମେ conservation ସହିତ ଆମେ production ମଧ୍ୟ ରଖିବା ସେଟାକୁ sustainable wordଟା ହିଁ ତାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ କନଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବା ହେଲା ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଟାକୁ ତୁମେ ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ କେବେ ହବ ନାହିଁ ମନୋକଲଚର ବି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲଚର ନାହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଅପସନ ଏଲିମିନେସନ କମନ ସେନ୍ସ ୟୁଜ କରିକି ବି ଏଟା ଆରାମସେ କରିପାରିବ 100 ଇନସିଟୁ କନଜର୍ଭେସନ ଛୋଟବେଳ ପଢିପଢି ଆସୁଛି ଇନସିଟୁ ମାନେ ନିଜ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ ନାହିଁ ହଜାର ଥର ମୁଁ କହିଥିଲି ଇନସିଟୁ କନଜର୍ଭେସନ ଏକ୍ସିଟୁ କନଜର୍ଭେସନ ଏଟା ମୁଁ ପଢିବ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ନା ଏଟା ପୁଣି ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା ଅବଶ୍ୟ ନ ପଢିଥିଲେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତ ହେଲା 100 ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କନଜର୍ଭେସନ ୱିଦିନ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ ହେଲା ତ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଭଲ ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯୋଉଟାକି କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡାନ୍ସ ଉପରେ ରହିବ ତ ଆଶା କରୁଛି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ